So this is the 2019 paper which I have arranged for you. Slide is visible to all, I think. I'll try to discuss each and every point in detail. This is how it looks like. इसमें बहुत सारे sections होते हैं. हमको करना है general science का section. तो हमारे जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने ये सिलेबस ऑलरेडी एक बार करा हुआ है, as far as I know, है ना? But I found the paper very easy, so we can discuss. This is how it looks like. और ये है हमारा section C, which is of general science. PDF I'll be sending the paper. मैं आपको भेज दूंगी. What you have to do, you keep noting down the answer. If कहीं आपको कुछ doubt है, all of you keep yourself on mute. All of you keep yourself on mute. When you have to answer, don't scream or shout in the class to disturb others. What you have to do, you just simply raise your hand and I'll try to give chance to each and everyone. Okay, the first question, which is question number 76 here, is rhizobium bacteria का क्या काम है? Please raise hand if you want to answer. Yes, Lakshya. Ma'am, help in nitrogen fixation. Yes, 3 have raised hands, out of which Lakshya have answered. So it helps in the nitrogen fixation. Very good. This is a very general question, जो कि सब लोग I think ये हमारा crop production भी हो गया है. तो this is a very common question जो usually आता रहता है. Question number 77, the metal which is stored in kerosene. 2 have raised hand. Yes, Anant Tomar. Yes, Anant. Answer 77. I'm phosphorus. तो आंसर है सोडियम. सोडियम विच इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल और ये बहुत विगरसली रिएक्ट करती है एयर से, वाटर से. तो इसको हम किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन में, सो दैट वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पुअर कंडक्टर्स आर. 6 have raised hands. Very good participation by the class. Yes, Harshvardhan. Poor conductors are. मैम प्लास्टिक. Only plastic. कोई है जो कि मैम वुड भी है. हाँ, Ma'am, all of these. Ma'am, all of these. it is all of these. Very good. आप जरा पेशेंस के साथ पूरा all the options पढ़ें. नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द जोन्स ऑफ फ्लेम. तो कितने फ्लेम में कितने जोन होते हैं? Ma'am, 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3 आंसर लाइक दिस. अब जो बीच में बोलेगा ना मैं उसको मौका ही नहीं दूंगी. यस, सूरज द्विवेदी. हाउ मेनी जोन्स? ओके, देयर आर 3 जोन्स इन द फ्लेम. क्लास 8 में एक चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, उसमें आपने पढ़ा होगा. नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड its direction will be. Yes, Rohit Yadav. Ma'am, opposite to the direction of motion. Very good. Friction always acts in the opposite to the direction of motion. Very good. तो अभी वैसे हमारा फ्रिक्शन चैप्टर नहीं हुआ है, बट दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन. हमने फोर्स में पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है that acts in the opposite direction of motion. Next है मैम. Yes. मैम मैंने पूरा साइंस पढ़ रखा है. 7, 8 का भी. मैम 9 का पढ़ रहा हूँ. अब बहुत अच्छी बात है. ये 9 पढ़ रहा हूँ. हाँ, 8 का ही चैप्टर है फ्रिक्शन, बहुत डिटेल में है. वैसे 9th में भी हम इसको कवर करते हैं. ओके, वेट, डोंट डिस्टर्ब मी. Question number 81, the stage of embryo in which all the body parts. Fetus. It is fetus, not. It is fetus. क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है that is zygote. Zygote सिंगल सेल है. zygote का डिवीजन होता है तो it gets converted into embryo. एम्ब्रॉयो एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी है. एम्ब्रॉयो के बाद जब उसका डेवलपमेंट होता है आफ्टर 6-7 मंथ्स, जब उसके हाथ पैर वगैरह दिखने लगते हैं, तब उसको हम बोलते हैं फीट. नेक्स्ट है द डायबिटीज इज ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ. May I? यस, अमन. Pancreas.
डायबिटीज तभी होती है जब आपका पैंक्रियास जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन करता है Yes, ma'am. शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। तो अगर पैंक्रियास ठीक से नहीं काम कर रहा है then you get suffered from diabetes. Question number 83. Naphthalene balls are obtained from. Who will answer? मैम अर्जुन। Arjun Dwivedi, yes, Arjun. मैम कोल तार। Yes, it is obtained from the coal tar. Very good. तो क्लास का पार्टिसिपेशन तो बहुत ही अच्छा है, हम देख सकते हैं बहुत से चैप्टर्स अभी हुए नहीं है, बट यू ऑल कैन आंसर. Okay, question number 84. John accidentally placed his hand over the flame and immediately pulled it back. He felt the sensation of heat and reacted due to the action of which cell? Yes, please raise hand. मैम न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। Raise. You can raise मैं hand बताऊं? always. Wait. मैम Yes, Kshitij Chauhan. Nerve cell. The answer is nerve cell. Very good. Question number 85. A purple colored non-metal forms a brown solution in alcohol and which is applied on the wounds as an antiseptic. The name of the non-metal is. Who will answer? Yes, Aman. मैम मैम Aman. आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन और उसका अल्कोहल ऑफ सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? अल्कोहल में जो सोल्यूशन आप बनाते हैं, द सोल्यूशन इज कॉल्ड. Yes, Rohit. Do you know the name of the solution which is prepared of iodine and alcohol? Alcohol. Do you know the? Yes, Lakshya. What the solution name of the solution is? अमन, आपको पता है solution का नाम? Iodine का solution which is made in alcohol, it is called tincture of iodine. Purple colored का solution होता है and it is applied on the wounds as an antiseptic. Okay, question number 86. Given below are the harmful effects of weeds on crop plant. Choose the correct combination of statement. Who will answer this question? Read all the options thoroughly. Yes, ma'am. Come and answer. 7 participants have. Wait, Rohit. रोहित, जब किसी से नहीं बनेगा तब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? यस, निखिल हैज रेज्ड हैंड. यस निखिल, कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल है? 86. नो. यस लक्ष्य. मैम ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. A. 1, 3 and 4 they interfere in harvesting. Third है they compete with the crops for water, nutrient, space and light. Very good. They affect the plant growth. So everyone agree with the answer or some of you disagree as well? Aman, आप agree हैं इस आंसर से? सबका यही आंसर है? ऑप्शन ए 1, 3 and 4. ओके. मैम हाँ. मैम 3, 4 भी तो हो सकता है मैम. एक्चुअली क्या होता है कि आप जो वीडिंग है ये आप हार्वेस्टिंग के पहले कर लेते हैं. एक स्टेप आता है क्रॉप प्रोडक्शन में. अगर यस मैम. तो हाँ, इट कांट इंटरफेयर विद द हार्वेस्टिंग, क्योंकि वीडीसाइड्स और वीड को रिमूव करना ये सब हम पहले कर लेते हैं एक स्टेप में, है ना, बिफोर हार्वेस्टिंग. यस मैम, मैंने बोला है 3, 4. इट आंसर इज. तो आपको मल्टीपल चॉइस में मोस्ट करेक्ट, मोस्ट सूटेबल आंसर आपको चुनना है, क्लोजेस्ट आंसर आपको चुनना है, ठीक है? तो इट इज आंसर इज बी अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो. मैम मैंने भी बताया 3, 4. सही रो, इसलिए मैं बोल रही हूँ आई हैव केप्ट यू एज अ ट्रम्प कार्ड, है ना, कि जिसको जो कुछ कोई नहीं बोल पाएगा वो रोहित बोलेगा. तो 3rd and 4th इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वीडिंग हम पहले ही कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के पहले. ओके, लक्ष्य क्लियर हो गया? Yes, Question ma'am. number 87. Which of the following groups contain all synthetic substance? Yes, Nikhil. Nikhil. 87 answer. Question number
A. Nylon, terylene and wool. Wool is not a synthetic substance. First of all, let me tell. Yes, Harshvardhan. Check out all the options carefully. Wool is a natural substance which is obtained from sheep. Synthetic इसमें क्या क्या है? Yes, Lakshya. Ma'am, Ma'am, PVC polyethylene like. Yes, it is PVC, polyvinyl right answer. chloride, polythene and bakelite. मतलब ये सारे हैं synthetic substances. They are prepared in the laboratory. इसके अलावा wool है या cotton है, silk है, ये सारे natural substance है. Next है question number 88. Which of the following statement is true about endemic species? तो endemic species ये chapter अभी हमने नहीं पढ़ा है, conservation of plants and animals. Endemic are those species which are present in the specific habitat only. ठीक है? तो कोई आंसर देना चाहेगा? Question number 88. Yes, ma'am. Yes, Lakshya. Option number A. Option A, they are found exclusively in a specific habitat. Okay. Next, question number 89. Identify the correct statement about the cells. Who will answer this Yes, question? ma'am. May I? Wait. ma'am, may I? Let all raise hands. Yes, Rohit Yadav. Rohit. Identify the correct statement about the cells. All the cell of nucleus, cell of an organ has similar structure. Cell of a tissue has a similar structure. Ma'am, C. Option is, your answer Ma'am, is? Ma'am, may I? Wait. ma'am, Rohit C. answer. C. It's wrong. Yes, Aman. Ma'am, B हो सकता है B. मैम ऑप्शन ए. Option A, all cells have nucleus. Cell and tissue का similar structure नहीं होता है. Rohit, how can you say cell and tissue? Tissue is the group of cell. तो cell और tissue का similar structure बिल्कुल नहीं है. आप बोल रहे हो ऑप्शन डी, शेप ऑफ ऑल द सेल्स इज राउंड. इट इज नॉट करेक्ट. आपने देखा है मसल सेल है स्पिंडल शेप की, नर्व सेल Ma'am, B. है. B. आंसर इज ए. B. आंसर इज ए. ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस. कौन सी ऐसी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है? बताओ रोहित. मैम प्यूकैरियोटिक के पास मैम नहीं होता है. मैम एब्सेंट होता है. एक मिनट सेल होता है. एक मिनट, लेट मी करेक्ट. प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल होता है, लेकिन वो इट इज नॉट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता, मतलब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता. न्यूक्लियर मटेरियल इज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. तो वो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, बट न्यूक्लियस है. समझ में आ रहा है? तो ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो रोहित यादव यहाँ गलत हो गए. क्वेश्चन नंबर 19. Ma'am, may I? Wait. Let all the participants have raised hands. Question number 19. Aquatic animals in which fertilization occur in water are said to be. Who will answer? Ma'am, may I? Wait, Ma'am, may I? wait, Aman. Wait, Aman. कोई आंसर देना चाहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. May I? Okay. नहीं, सूरज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. डिस्टर्बेंस है तुम्हारे एंड पे. क्षितिज चौहान या क्षितिज ने आज आंसर नहीं किया है. क्वेश्चन नंबर 19. क्षितिज. आवाज नहीं आ रही. चलो लक्ष्य तुम बोलो. Ma'am, oviparous with external fertilization. Very good. Its answer is B. Oviparous with external fertilization. Yes, Aman. Okay, correct है. Aman. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है. Oviparous means they lay eggs. But external fertilization इसलिए है क्योंकि fertilization is not happening inside the body. क्या होगा? Female counterpart they lay egg at some near the water body. And eggs are protected with the jelly or sheet. और उसके बाद फिर male counterpart
goes there and fertilization happens. So it is outside the body. So it is called as the external fertilization, and female lay egg. So it is oviparous. So answer is 90B, oviparous with external fertilization. Very good. Okay, next है हमारा light from the sun takes. ये मैं बताऊं? Wait, let others calculate. सबको calculate करने दो. The light from the sun takes 500 seconds to reach the earth, assuming that the speed of light is 300,000 kilometer per second. Calculate the distance between sun and the earth. कौन बता रहा है आंसर? तो आपको सिंपल equal to distance by time लगाना है. Yes, Aman. What is B option. B option. B. मैम 15 मिलियन किलोमीटर. One. यस बिल्कुल सही. तो सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आपको लगाना है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है. तो सबका आंसर आ गया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक. क्वेश्चन है मैम. हाँ बोलो. मैम मिलिट्री स्कूल गए. क्या मैम ऑन the combined mass of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called? atomic mass. हाँ, it is the atomic mass. Wait, ये हम डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है उसमें पढ़ लेंगे. अभी हम ये कर लें अमन, या आपके जितने भी डाउट्स है ना आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है. Let me finish this paper first. Okay, which of the following is not an application of chemical effects of electric current? 6 have raised hands. Harshvardhan. Harshvardhan, what is the answer? Yes, ma'am. मैम मुझे दिख नहीं रहा. दिख नहीं रहा? किसको किसको नहीं दिख रहा है? Rest of you can see the slide. रोहित दिख रहा है? Okay, Lakshya, what is the answer, Lakshya? Decomposition of elements. हाँ, decomposition of elements. Slide is visible to all. First of all, let me know. Slide सबको दिख रही है? Slide is visible. सबको दिख रही है ना? Okay. मैम अच्छा से नहीं आ रही है यहाँ. तो पहले बोलना था. Okay. Which of the following मैम is... नेटवर्क चेक करता हूँ. तो जिसको मैम नेटवर्क चेक करता हूँ, रुकिए. Okay, the following is not the application of chemical effects of electric current. That means chemical effects of electric current अभी चैप्टर वैसे हमने पढ़ा नहीं है. उसमें आपको क्या क्या करना है, उसमें आता है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या क्या केमिकल चेंज ला सकते हैं कंपाउंड्स में. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल इफेक्ट. मतलब इसमें आप एक मेटल की प्लेटिंग दूसरी मेटल के ऊपर करते हैं. देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड. जैसे वाटर है, वाटर का डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपली यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना. डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अलग करना, जो कि इलेक्ट्रिक करंट से पॉसिबल नहीं है. तो the following, the option C is not the application of chemical effect of electric current. Got it? पूछना है किसी को कुछ? No. Okay, next है question number 93. The earthquake of magnitude 6 on Richter scale has... C option. Correct option. C. Ma'am C. हाँ, तो जब भी आपका रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड 2 पॉइंट से बढ़ता है तो जो डिस्ट्रक्शन है वो भी 1000 टाइम्स से बढ़ता है. दिस इज द सिंपल रूल विच
which is followed. तो आंसर is 4 और 6 में कितने का डिफरेंस होगा? 1000 मैम टाइम्स. 2. रिक्टर स्केल का जो आप मेजरमेंट करते हैं, हाँ मैम. the increase of 2 in magnitude means 1000 time more destruction. तो अगर 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, then the destruction will be 1000 times. Question number 94. Which of the following statement is correct regarding rods and cones in the human eye? Who wants to answer? तो May I? yes, Aman. Ma'am, cones are sensitive to bright light. Yes, rods are active in dim light and cones are active in bright light. ठीक है? And cones also, color जो आपका है, आंखों को color जो बताता है, color recognize आप cones की वजह से करते हैं. तो cones are active in bright light and rods are active in dim light. इसको याद कर लो, ये question बहुत ही common है. Next है, okay. मैम एस चंद में दिया हुआ है. मैम एस चंद में दिया हुआ है. हाँ, ये चैप्टर नहीं, आपकी बुक में भी है. ये अभी हम लाइट करेंगे, लाइट चैप्टर. तब आपको समझ में जाएगा. हाँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 95 we'll discuss later, क्योंकि ये भी एक चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 96. This is based on combustion and flame. Ramesh was cooking a potato curry on a chula. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from outside, maybe due to. किस वजह से हो रहा है? Yes, Rohit Yadav, what is the answer? Why is copper vessel getting मैम improper combustion of fuel. तो फ्यूल को बर्निंग के लिए चाहिए ऑक्सीजन. अगर किसी वजह से जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो कंप्लीट बर्निंग नहीं होती एंड द वेसल विल गेट ब्लैकेंड. मैम इसे 3 या 4 कंडीशन होता है मैम. हाँ, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन आउट ऑफ ऑल. ठीक है? यस मैम. ओके, कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए, तभी वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा और आपका वेसल जो है वो ब्लैक नहीं होगा. मैम इसके बाद वाला मैं बताऊं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 97. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is the mixture of. Copper hydroxide and copper carbonate. Very good. A green material जो है तो हमने corrosion पढ़ा है. corrosion में कॉपर हो जाता है ग्रीन कलर का, सिल्वर हो जाता है ब्लैक कलर का. सिल्वर के ऊपर हमने डिस्कस किया था मेटल नॉन मेटल में, इट इज द ब्लैक कोटिंग ऑफ सल्फाइड. बट कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होती है दैट इज ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. 5 have raised hands. Do you all agree with my answer? रोहित यादव, निखिल, लक्ष्य, क्षितिज चौहान, सबका सेम आंसर है. कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98. द प्लेसेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल हैबिटेट इज. हाँ जी, 6 have raised hands. Yes, रोहित. मैम C3 and 4. 3 and 4 sanctuaries and national parks. बिल्कुल सही है. For the conservation of biodiversity. Question number 99. Biodiversity. Very good. The same force acts on 4 different objects having the areas given below one by one. In which of the case pressure exerted will be maximum? कौन सी केस में pressure maximum होगा? Yes, लक्ष्य. 10 meter square. 10 meter square. जिसका एरिया सबसे कम है उसका मैक्सिमम, जिसका एरिया Pressure equal to force upon area. ओके, एरिया जिसका कम है. चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा. Who will answer? Let me see who can answer it correct. Concert, a sitarist tries to adjust the tension and the pluck in the strings suitably. By doing so, he is adjusting. Yes, कौन आंसर करेगा? No, no one. May I? Aman. Yes, Aman. Yes, ma'am.
मैम बी। मैम बी। मैम सी ऑप्शन सी। मैम सी ऑप्शन है। एक मिनट सी। कौन कौन बोल रहा है सी ऑप्शन है? मैम अमन राउत। और कौन है? निखिल। और एनीवन एल्स हु इज आंसर इज सी? किसका किसका आंसर सी है? रोहित का आंसर इज बी। आई नो व्हाई एम्पलीट्यूड, आपको एम्पलीट्यूड क्यों उसको करना है, एडजस्ट करना है? मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ सबका रहा। आपको देखो, व्हेन ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो एक ऑर्केस्ट्रा में खाली एक ही तो इंस्ट्रूमेंट बज नहीं रहा होता, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो सबकी जब आप फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे तभी आपको एक यूनिफॉर्म यूनिसन में एक यूनिफॉर्म वॉइस सुनाई देगी, ठीक है? तो सब लोग क्या करते हैं, ओनली देन इट विल बी गुड टू योर ईयर्स, जब सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी बज रहे हैं, स्पेशली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तभी आपको एक अच्छी धुन सुनाई देगी। तो जो वो कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, दे एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार विद अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी एक अच्छा आपको आवाज सुनाई देगी। समझ में आ रहा है? और मैम मैम। अगर मैम सेम नहीं होंगे तो मैम नॉइज होगा। हाँ, हाँ नॉइज और उसमें डिफरेंस होता है ना। साउंड चैप्टर वैसे हमने नहीं किया, बट जब करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हाँ। कि हाँ बोलो रोहित। मैम नॉइज जो होता है अनप्लीजेंट साउंड होता है, हाँ। और जो म्यूजिक होता है प्लीजेंट होता है। तो म्यूजिक मैम इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मैम इसके बाद वाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैम तो इसके बाद है सोशल साइंस का पेपर। हाँ मैम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, आई विल बी सेंडिंग द होल पेपर टू यू, यू कैन इजीली सॉल्व देन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।